some theorems on equivalence relation. में पहला थ्योरम ये है, if a relation R be an equivalence relation on a set A, then R inverse is also an equivalence relation. कोई रिलेशन R अगर इक्विवेलेंस है किसी सेट ए पे, तो कहता है आर इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेम सेट. We have to prove R inverse is an equivalence relation. We have to show R inverse is reflexive, symmetric and transitive. स्टेप वाइज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल reflexivity, let A belongs to A and R be an equivalence relation. Now first is reflexivity. AA belongs to R implies AA belongs to R inverse. So R inverse for all A belongs to A. So R inverse is reflexive. इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक ऐसा आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि मान लेते हैं कि ये R कोई रिलेशन है. एग्जाम्पल के तौर पे उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 3 4. ये कोई रिलेशन है, तो इसका इन्वर्स कौन हो गया? R इन्वर्स इज. तो कहा कि 1 का रिलेशन 2 से, 1 इज रिलेटेड विद 2, देन 2 इज रिलेटेड टू 1. यानी ये जो होगा 2 1 3 2 एंड 4 3, ये जो रिलेशन हुआ वो रिलेशन R का इन्वर्स कहलाएगा. तो कहता है कि अगर कोई रिलेशन R इक्विवेलेंस है, then R inverse should be also an equivalence relation, in which we first step is reflexivity. AA belongs to R. This implies AA belongs to R inverse. For all A belongs to A, so R inverse is reflexive.
सेकेंड में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर, then BA also belongs to R, then R is called symmetric. So let AB belongs to A. Now AB belongs to R inverse. We suppose AB belongs to R inverse, then we have to show BA also belongs to R inverse. So in this case R inverse will be symmetric. So AB belongs to R inverse. This implies BA belongs to R. BA belongs to, जब AB belongs to R inverse है तो BA भी belongs to R होगा, और जब BA belongs to R होगा, this implies AB belongs to R inverse. AB belongs to R. AB belongs to R. कहा क्यों ऐसा होगा? तो हम लोग कहेंगे कि since R is symmetric, as R is an equivalence relation. चूंकि R इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर R हमारा सिमेट्रिक है तो BA बिलोंग्स टू R है, दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू R। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर AB बिलोंग्स टू R है देन BA बिलोंग्स टू R इनवर्स, तब हम लोग ने क्या देखा? AB बिलोंग्स टू R इनवर्स implies BA belongs to R inverse. So R inverse is, that is AB belongs to R inverse implies BA belongs to R inverse. For all AB belongs to A, AB belongs to A, AB belongs to A, AB belongs to A, so R inverse is symmetric. R inverse is a symmetric. Now third point, transitivity. Now we have to show R inverse is ट्रांजिटिव, और इसके लिए ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा अगर AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा हो गया देन R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ हम लोग को शो करना है कि R इनवर्स इज ट्रांजिटिव, तो AB बिलोंग्स टू R इनवर्स, BC बिलोंग्स टू R इनवर्स, एंड वी हैव टू शो AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R इनवर्स। अगर ऐसा हम लोग कर देंगे देन R इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलें आप, लेट ABC बिलोंग्स टू A and AB belongs to R inverse, AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse implies AB belongs to R inverse, that is so BA belongs to R। इसका ऑपोजिट रिलेशन हो गया, BA belongs to R and BC belongs to
BC belongs to R inverse, that is CB belongs to R. Now this implies CB belongs to R and BA belongs to R. फिर से हम लोग देखें, पहले हम लोग इसको पहले लिखा कि CB belongs to R एंड देन BA belongs to R. तो पहले C का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन A के साथ, और चूंकि R इक्विवेलेंस है और R इक्विवेलेंस है तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, और जब वो ट्रांजिटिव हो गया तो CA belongs to R. दिस implies CA belongs to R, और जब CA belongs to R है, दिस implies AC belongs to R inverse. तो हम लोगों ने क्या देखा, AB belongs to R inverse, BC belongs to R inverse, then AC belongs to R inverse. Hence R inverse is transitive. Hence R inverse is ट्रांजिटिव. जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो आपने शुरू से अब हम लोग देखें कि R inverse is reflexive, R inverse is symmetric and R inverse is also transitive. Hence R inverse is an equivalence relation. Finally R inverse is symmetric, R inverse is reflexive, R inverse is reflexive, symmetric and transitive. So R inverse is an equivalence relation. एक रिलेशन हो गया. हेंस द प्रूफ. और ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया. और इसमें 2-3 थ्योरम ऐसा है जो रेगुलर अल्टरनेट ये सब पूछा जाता है 12 में, लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव में रहेगा तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बना देगा कि अगर R इनवर्स R इज इक्विवेलेंस है तो R इनवर्स क्या होगा. 4 ऑप्शन जैसे दिया कि सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों होगा, इक्विवेलेंस होगा. तो वहाँ पे हम लोग को कंपैरिजन में सिर्फ इसका चाहिए कि रिजल्टेंट क्या होता है, लेकिन यही 12 पोर्शन में आएगा. तो एज ए थ्योरम कि अगर R इक्विवेलेंस है तो R इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ थ्योरम 2, दूसरा थ्योरम हम लोग अब देखेंगे, और वो दूसरा थ्योरम है थ्योरम नंबर 2. If R and S be two equivalence relation, defined on A, then R intersection S is also an equivalence relation, but
but R union S is not necessarily equivalence. इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं इसको कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है और तो उसका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, लेकिन यूनियन जो है वो कंफर्म नहीं है कि वो इक्विवेलेंस होगा। तो इसीलिए लिख रहे हैं कि नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस, यूनियन इज नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंट, बट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब स्टेटमेंट ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट ही एक क्वेश्चन हो जाता है कि यहीं पे दे देता है कि अगर आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, सिमेट्रिक होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, इस टाइप का वो सेटिंग 4 ऑप्शन में देता है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ करने चाहिए। 12 जो है वो प्रूफ का मामला है, लेकिन यही अगर कंपटीशन होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है जानना की। स्टेटमेंट याद है, ऑप्शन कंप्लीट हो गया। चलिए पहले अब हम लोग फिर से देख लें कि आर एंड एस बी इक्विवेलेंट। मान लेते हैं आर एक रिलेशन है ए पे, तो इसका मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब आर ए पे रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, इक्विवेलेंस हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कहा आर कोई एक रिलेशन है, तो आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड एस बी ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज एस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अब आपको पहला क्लास में जो हम बात किया था वो ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा था कि विदाउट सेट थ्योरी आप रिलेशन और फंक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो वो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जो बात बोला था वो सही है। अब यहाँ पे देखिए, आर अगर सबसेट है ए क्रॉस ए का और एस भी सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो कन्फर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी यहाँ से ये हमारा प्रूफ मिला कि दैट इज आर क्रॉस एस इज ऑल्सो ए रिलेशन, दैट इज R intersection S is a relation. Now we have to prove R intersection S is an equivalence relation. और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए फिर वही हमारा 3 स्टेप होगा कि पहले R इंटरसेक्शन S को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करें, दूसरे में सिमेट्रिक प्रूफ करें, तीसरा ट्रांजिटिव प्रूफ करें। और अगर ये हमारा तीनों हो गया देन वी कैन से आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लोग ये रिफ्लेक्सिविटी A belongs to A, let A belongs to A, so A belongs to R, A belongs to R, since R is an equivalence relation and R is equivalence relation, so R will be reflexive, symmetric and transitive. And A also belongs to S. This implies A belongs to R intersection S. इंटरसेक्शन का भी डिफरेंशियल लिखाए थे कि अगर इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। अगर A और B कोई 2 सेट है और उन 2 सेट के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट से सेट बनता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। तो अगर ये एलिमेंट R का है और यही एलिमेंट इसका है, तब नेचुरली ये एकदम फाइनली हम लोग ये समझेंगे कि R इंटरसेक्शन S में ये एलिमेंट होगा। और A belongs to, for all A belongs to A, so R intersection S is reflexive.
पहला पॉइंट प्रूफ हो गया कि आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। इसका दूसरा पॉइंट है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक। तो आर इंटरसेक्शन एस को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो कोई एलिमेंट हम लोग लें ए बी और वो दिखलाएं कि बी ए भी उस सेट का है। तो हम लोग सबसे पहले ले लें ये ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस फॉर ये जो हम लोग कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए है। दो एलिमेंट हम लोग ए का ए बी लिए और ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, देन वी हैव टू प्रूव बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्स ऑल्सो। तो यहाँ से अगर हम लोग ये देख लिया तो क्या पता चला कि ए बी अगर आर इंटरसेक्शन एस का कोई एलिमेंट है देन ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड इंटरसेक्शन मीन्स एंड यूनियन मीन्स और। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस ऑल्सो। दोनों का क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो अलग अलग दोनों का एलिमेंट होगा और क्योंकि आर इक्विवेलेंस है इसका मतलब आर सिमेट्रिक है, एस भी इक्विवेलेंस है, एस भी आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी से अगर हम लोग देखें तो बी ए बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू एस। ये हम लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सिंस आर एंड एस आर इक्विवेलेंस है, दैट इज सिमेट्रिक है, इसलिए ये हमारा कह सकते हैं कि जब सिमेट्रिक है तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बी बिलोंग्स टू एस है तो बी ए, और बी ए बिलोंग्स टू आर and BA also belongs to S. This implies BA belongs to R intersection S. तो हम लोग यहाँ पे क्या पाया कि AB belongs to R intersection S implies BA belongs to R intersection S. So SR intersection S is symmetric. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट स्टेप इसका ट्रांजिटिव प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव भी है और अगर ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया देन वी कैन इजीली से दैट आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव होगा, इसके लिए हम लोग आए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी ए का कोई तीन एलिमेंट है और ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, बी सी belongs to R intersection S. If we can prove A C belongs to R intersection S, अगर ऐसा हम प्रूफ कर सकते हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि R intersection S is transitive also. तो
इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़े। देखिए क्या लिख सकते हैं, जब ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है, इसका मतलब है कि ए बी जो है वो बिलोंग करेगा आर में, एंड ए बी जो है वो बिलोंग करेगा एस में। एस में भी होगा, आर में भी होगा। सिमिलरली बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, सो एंड यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। तो हम लोग क्या देखा, यहां से फिर से देख लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और सिंस आर इज इक्विवेलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि आर ट्रांजिटिव है, और आर अगर ट्रांजिटिव है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। फिर से एक बार इसको समझो, क्लियर इसको समझो। देखो कि ट्रांजिटिव का जो डिफिनेशन था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, then we can say R is a transitive। देखिए यहाँ A B belongs to R, B C belongs to R, and since R is equivalence, that is R is transitive also, और due to transitivity A B belongs to R, B C belongs to R, A C belongs to R, and A B belongs to S, B C belongs to S implies एस। और फिर इन दोनों से देखें, ए सी बिलोंग्स टू एस एंड ए सी बिलोंग्स टू सॉरी ए सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। आप क्या पाए यहां से देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, implies AC belongs to R intersection S. So R intersection S is transitive, और इससे ऊपर हम लोग ये देखा कि R intersection S is reflexive, symmetric and transitive. Hence R intersection S is an equivalence relation. So hence R intersection S is an equivalence relation। R equivalence relation। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया थ्योरम। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अपर हैंड है, लेकिन उसको जान जाइए, अच्छा ही रहेगा। उस पर नेक्स्ट में हमारा एक थ्योरम और है। पहले एक सीखिए क्या है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। पहले इसका डिफिनेशन भी हम लिख देते हैं, तब इस पे एक थ्योरम आएगा जो रिलेटेड होगा इक्विवेलेंस रिलेशन से। हम लोग कहें कि लेट एम बी एंड आर्बिट्रेरी and fixed integer fixed integer fixed integer हो गया। let a and
b are any two integers such that a minus b is divisible by m, then we say that a is congruent to b modulo m, written as a is congruent to b modulo m। और इसके क्या मतलब हुआ? इफ एंड ओनली इफ a minus b is divisible by m, और जब a माइनस बी डिविजिबल है तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप कि a माइनस बी इज इक्वल टू एम के, वेयर k is any integer, k is an integer, ये लिख सकते हैं a माइनस बी, ये हुआ। तो अब इसको फिर से एक बार देख लें। हमने क्या कहा कि अगर m कोई फिक्स्ड इंटीजर है और a और b एनी टू इंटीजर है तो a is said to be congruent to b modulo m if a minus b is divisible by m, and we write this such as a congruent to b modulo m। अब इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिए अगर हम लोग ये कहें 18 is congruent to 3 modulo 5। क्या मतलब हुआ? 18 माइनस 3 डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, तो 18 माइनस 3 दैट इज 15 विच इज डिविजिबल बाई 5, so we can say 18 is congruent to 3 modulo 5। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्यों ऐसा कहा कि 18 माइनस 3 अगर हम लोग कहें तो ये 15 है विच इज डिविजिबल बाई 5, सो 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5। लेकिन अगर हम ये कहते कि 17 मोडुलो 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5, तो ये स्टेटमेंट गलत होता, इसलिए कि 17 माइनस 3 हो गया 14 और 14 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यही कह देते कि 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 2, तब ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि 17 माइनस 3 दैट इज 17 माइनस 3 दैट इज 14 एंड 14 इज डिविजिबल बाई 2, देन स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन अगर कहते कि 17 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि कॉन्ग्रुएंट किसको कहेंगे। तो कहता है ए रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट डिफाइंड ऑन आप इसको एक स्टेटमेंट लिख लें। कॉन्ग्रुएंस मोडुलो m
defined on set of integers is an equivalence relation. फर्स्ट में जो प्रूव करते हैं सिस्टम वही, स्टेटमेंट केवल सब कुछ वही रहेगा, बस ये चूंकि दिया हुआ अलग है इसलिए इस पर डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, let A belongs to Z set of integers, कोई इंटीजर लिया A is an integer either positive or negative, there is no matter positive or integer, any either positive or negative, then A minus A is equal to 0 and 0 is divisible by any integer, that is divisible by m. So A is congruent to A modulo m, that is relation is reflexive, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट में आइए, सिमेट्रिसिटी, लेट A B बिलोंग्स टू Z, कोई दो इंटीजर ले लिया Z का, कोई दो एलिमेंट A एंड B, देन वी हैव टू प्रूव A B कॉन्ग्रुएंट टू M। अगर लेकर चलें और दिखला दें कि BA भी कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। A B कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M implies A minus B is divisible by M. This implies B minus A is also divisible by M, since ये तो क्लियर है कि A माइनस बी अगर M से डिविजिबल है तो B माइनस ए भी M से डिविजिबल हो जाएगा। दोनों में अंतर या डिफरेंस ये आएगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा और इसका रिजल्टेंट अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन होगा दोनों। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे B माइनस ए इज डिविजिबल बाई M, दैट इज B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो M, that is it is symmetric, it is symmetric। नेक्स्ट में हम लोग ये करें ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव होगा तो इसके लिए फिर वही हम लोग लें कि A B C बिलोंग्स टू Z और A B C बिलोंग्स टू Z, वी टेक 3 इंटीजर्स A B C और इसमें अगर हम लोग ये माने कि A
congruent to B modulo M and B is congruent to C modulo M, then we have to prove A is congruent to C modulo M. अगर ये प्रूफ हो जाता है then the relation is transitive. तो उसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या हम लोग करते हैं. A is congruent to B modulo M, that means A minus B is divisible by M, and B minus C is divisible by M. This implies A minus B is equal to MK1 and B minus C is equal to MK2, where K1 and K2 are integers. नोट कीजिए, देखिए ये दोनों इंटीजर है. अब हम लोग को प्रूफ करना है कि A माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई M. तो हम लोग A माइनस सी लेकर चले. नाउ A माइनस सी and A minus C can be written as A minus B plus B minus C. Minus B and plus B will be cancelled, resultant will be A minus C. So we can write A minus C is equal to A minus B plus B minus C. ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं. और जब ऐसा लिख सकते हैं तो A minus B को यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, MK1 प्लस ये क्या होगा MK2, दैट इज M कॉमन K1 प्लस K2 एंड सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर. कोई दो इंटीजर का सम जोड़ वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा. तो यहाँ पे ये भी एक इंटीजर हो गया, दैट मीन्स M इंटू K, वेयर K इज एन इंटीजर, वेयर K इज एन इंटीजर. अगर ऐसा हुआ तो A माइनस सी इज डिविजिबल बाई M, दैट इज A माइनस सी इज डिविजिबल बाई M, divisible by M. This implies A is congruent to C modulo M. आप क्या पाया कि A is congruent to B modulo M, B is congruent to C modulo M, imply A is congruent to C modulo M. So this the relation is ट्रांजिटिव. और ट्रांजिटिव हो गया यानी तीनों पॉइंट प्रूव हो गया कि सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव है, एंड हेंस आर इज हेंस रिलेशन इज एंड इक्विवेलेंस. चलिए ये आज हम लोग का रिलेशन जो है वो क्लियर हो गया. अब आप इसको कमेंट में करेंगे, कहीं अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए तो हम उसमें आपको प्रेफर करेंगे. लेकिन आज हमारा रिलेशन का चैप्टर फिनिश हो गया और नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो फंक्शन पढ़ाएंगे और फंक्शन में ये देखेंगे कि माने ग्राफिकली भी समझाएंगे सब कुछ, और फंक्शन ही सबसे मेन पॉइंट चैप्टर होगा आपका मैथमेटिक्स का, जो फिजिक्स में भी काम आएगा. थैंक यू.